Hello students, good morning. Today we are continuing this biological classification chapter. Last time we completed this bacteria topic, right? In today's class, we are going to discuss about the second group of kingdom Monera organisms, and these are Archaeobacteria. Archaeobacteria. Okay, what are these Archaeobacteria? Archaeobacteria are those monerans which survive in extreme harsh environmental conditions. Where they survive? Survive in extreme harsh environmental conditions. Yes, that means they survive in very tough situations. Extreme harsh environmental conditions. Okay, so normally they do not found in those areas which are having all the suitable conditions. They are detected in volcanoes, very high temperature, absence of oxygen, or in acidic medium they are growing. That's why we are calling them, they are surviving extreme harsh environmental condition, and they are one of the most primitive organisms. Most primitive organisms, you can call them most primitive organisms on earth. Okay, and these Archaeobacteria, they are having cell wall, cell envelopes different from bacteria. That means here cell wall not made of peptidoglycan. So usually in bacteria cell wall is made of peptidoglycan, but in case of Archaeobacteria it is not made of peptidoglycan. Cell wall is not made of peptidoglycan. Then what is the chemical component in the cell wall of Archaeobacteria? If you say cell wall contain branch lipids, cell wall contains branched lipids. So these branch lipid, students, they are helping them to survive in harsh conditions, high temperature, say for example. Branch lipids are present in the cell wall of Archaeobacteria. Then one more, Archaeobacteria are of three types. Three types of Archaeobacteria. What are the three types? Number one is halophiles. Number one, halophiles. What are halophiles? Halophiles survive in high salt concentration. Survive in high salt concentration. So these are the most primitive organisms, halophiles, which are surviving in harsh condition like high salt concentration. In that they survive. And the second one, thermoacidophiles. Thermoacidophiles. Thermoacidophiles mean they survive in high temperature and acidic condition. High temperature पे survive होने वाले, acidic condition में survive होने वाले क्या है? Thermoacidophiles हैं. And third type I will write here, methanogens. So where these methanogens are found? In the gut of ruminants. Gut of ruminants में मिलेंगे आपको methanogens. Gut of ruminants, and they produces methane gas. What they produce? Methane gas. Okay, let's see one more time. Recall what are the important lines in Archaeobacteria. The first point was Archaeobacteria survive in extreme harsh condition. ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशन क्या होता है ना, वेरी टफ सिचुएशन,
very hard situation to survive. In that condition they are surviving. And archaeobacteria को हम most primitive organism बोलते हैं, अर्थ के very oldest organism में consider करेंगे archaeobacteria. And this point was very important. Cell wall was containing branch lipids. Cell wall जो है branch lipid से बना हुआ है, not peptidoglycan. This is also a very important line. And archaeobacteria में 3 types हैं. Halophiles मतलब जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव होंगे, लाइक ओशन वाटर वेयर लाइफ इज इम्पॉसिबल. इन दैट सिचुएशन आर्कियोबैक्टीरिया आर सर्वाइविंग हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में. थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव हो रहे हैं, एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव हो रहा है. हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन, थर्मोएसिडोफाइल सर्वाइव. एंड मिथानोजन्स जो हैं ये सर्वाइव हो रहे हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स में. रूमिनेंट्स किसको बोलेंगे? रूमिनेंट्स का मतलब है कैटल्स. काउज एंड बफेलोस, कैटल्स में मिलेंगे मिथानोजन्स. एंड दिस मिथानोजन्स दे बेसिकली प्रोड्यूसेस व्हाट? मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं. कैटल्स के इंटेस्टाइन में वगैरह मिलेंगे रूमिनेंट्स. रिमेंबर दिस वर्ड, रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं? कैटल्स को बोलते हैं. काउज बफेलोस के इंटेस्टाइन में मिलेंगे मिथानोजन्स. एंड इवन दे आर फाउंड इन कैटल डंग, जो वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, कैटल डंग. इन दैट आल्सो मिथानोजन्स आर प्रोड्यूस प्रेजेंट एंड दे आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस बनाने के लिए यूजफुल हैं. Okay, this is about archaeobacteria. Now let's move to the next group of organisms in kingdom Monera, and that is cyanobacteria. Cyanobacteria का first point याद रखिए, they are eubacteria. That means they are also coming under the category of true bacteria. eubacteria मतलब true bacteria. Yes, cyanobacteria are also true bacteria बोल सकते हैं. And all commonly called, what we call our cyanobacteria commonly cyanobacteria are called BGA. What are BGA? Blue green algae बोलेंगे इनको. Commonly blue green algae बोलेंगे. And they have pigments. Pigments मतलब कलर पिगमेंट्स. और इनके जो कलर पिगमेंट्स हैं यहां पर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए. ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पिगमेंट, क्लोरोफिल ए. अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए दे आर ऑल्सो हैविंग फाइकोसायानिन, blue color pigment. Chlorophyll A green, phycocyanin blue, both combination they are giving blue green color for them. That's why they are called blue green algae. And all the cyanobacteria are autotrophic, that is photosynthetic. ये सारे के सारे cyanobacteria होते हैं photosynthetic बोलो, या नहीं तो आप autotrophic भी बोल सकते हैं. This is what autotrophic. And all the cyanobacteria, they are having one common thing, that is they have specialized cell. cyanobacteria में एक special cell होता है, specialized cell होता है. What is that specialized cell in cyanobacteria? It is called heterocyst. क्या बोलेंगे? heterocyst. And this specialized cell heterocyst, it is helping for nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करने वाले सेल्स हैं. A very important line, question can be framed. What is the specialized cell in cyanobacteria helping for nitrogen fixation? Your answer should be heterocyst. ये स्पेशल सेल्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं ये. ठीक है, चलो नेक्स्ट. These cyanobacteria, they are also prokaryotic.
ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक हैं, ओके। And what are the examples, best example of cyanobacteria? You can remember the trick NOA, Nostoc, Oscillatoria, and Anabaena. These are the common example, you can say. In case of cyanobacteria category, we find example like Nostoc, Oscillatoria, and Anabaena. And all these cyanobacteria, they are capable of nitrogen fixation. Wherever they are present, they do nitrogen fixation. Okay, take down these points. क्या था यहाँ पे important points अगर highlight करेंगे हम? Very important point. Name the first group of organism containing chlorophyll A. First time chlorophyll A seen in case of cyanobacteria. First group of organism with chlorophyll A. Chlorophyll A is also present in higher plants. The same pigment, it is also seen in cyanobacteria. But cyanobacteria को हम plants consider नहीं कर सकते because they are autotrophic, because they are prokaryotic. Prokaryotic रहने की वजह से they are not plant. Otherwise ये plant kingdom में रख सकते थे. ये photosynthesis करते हैं, chlorophyll A रखते हैं, right? And the second most important point, heterocyst. Heterocyst एक special cell होता है इनके पास nitrogen fixation के लिए. Let's see the diagram of this cyanobacteria. डायग्राम कैसा है देखिए. Cyanobacteria में एक एग्जाम्पल है Nostoc. They are having what filamentous structure. A filamentous structure होगा where the cells are arranged one above the other like this. Okay, and the complete body of this filament is covered by a mucilaginous sheath. It is covered by a mucilaginous sheath. तो यहाँ पे लेबलिंग करें अगर हम, तो ये सबसे बाहर का जो कवर है, दिस इज कॉल्ड म्यूसिलेजिनस शीट बोलेंगे इसको, ओके। और ये रहे इनके स्पेशल सेल्स, व्हाट डू यू कॉल देम? हेटेरोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, हेटेरोसिस्ट हो गए। एंड दे आल्सो हैव सम ऑफ द सेल्स कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स, vegetative cells, and they also have some cells called akinets. You can see here, this is what the diagram of Nostoc. Okay, Nostoc is a filamentous blue-green algae wherein the body is externally covered by mucilaginous sheath. This mucilaginous sheath, it provides slippery nature. It gives slippery nature. So that means Nostoc cannot be handled in hand because they easily slip out from your hand because of mucilaginous sheath. And you know, heterocyst is doing nitrogen fixation. Vegetative cell is doing photosynthesis. And akinates are doing storage of food. Akinates are helping for storage of food. So that means Nostoc are having very clear cut division of labor बोलते हैं इसको. Division of labor means work distribution. Division of labor. वर्क डिवाइड हो गया है. वेजिटेटिव सेल को कुछ काम दिया गया है, हेटेरोसिस को वर्क दिया गया है, म्यूसिलेजन. ईच एंड एवरी सेल हैज गॉट ए स्पेशल टास्क एंड दे डू दैट वर्क. ओके, नोट करिए पॉइंट से. ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो.
Okay, now let's move to the next group of organisms in kingdom Monera, that is mycoplasma. So kingdom Monera totally divided into one group bacteria, then second group archaeobacteria, cyanobacteria, and one more group, that is mycoplasma. Mycoplasma are not having cell wall. Name the kingdom Monera organism which are not having cell wall. तो आप लिखेंगे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, एंड माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कंसिडर करते हैं, सबसे छोटा सेल है साइज में ये माइकोप्लाज्मा. एंड दिस माइकोप्लाज्मा आर not sensitive to penicillin antibiotic, ये पेनिसिलिन से सेंसिटिव नहीं है. एंड माइकोप्लाज्मा सर्वाइव इन, कहां पर सर्वाइव हो रहे हैं? सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आराम से ग्रो होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. ओके, एंड दिस माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पैथोजेनिक होते हैं, डिसीज कॉजिंग. नॉट हैविंग सेल वॉल, नेम दी किंगडम मोनेरा ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन बन सकता है, name the kingdom Monera organism which are not having cell wall. So your answer should be mycoplasma. Cell wall less monerans, बोल तो mycoplasma है, smallest living cell है ये. And these are not sensitive, this is very important line, these are not sensitive to penicillin antibiotic. Actually penicillin antibiotic, it was a major discovery during World War II, where Alexander Fleming discovered this antibiotic penicillin, and this penicillin is called wonder drug. It was used for treatment of infections extensively, okay, during World War II. Injured patients are treated by using this antibiotic penicillin. वंडर ड्रग है, लेकिन पेनिसिलिन जो है माइकोप्लाज्मा को किल नहीं कर सकता, क्योंकि पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय सेल वॉल, और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं. पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय सेल वॉल बोल सकते हैं, पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय सेल वॉल, और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है. So that's why they are not sensitive to penicillin antibiotic, you can say. And this mycoplasma survive in absence of oxygen. Absence of oxygen को हम क्या बोलते हैं? Anaerobic condition. anaerobic मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो होने वाले, anaerobic बोले इसको, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड दे आर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक है, दैट मीन्स डिसीज कॉजिंग है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी. दे कैन कॉज डिसीजेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, एंड सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? कंडीशन एनएरोबिक. स्टेटमेंट्स कैन बी फ्रेम्ड लाइक दिस: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा क्वेश्चन में. सो 4 स्टेटमेंट विल बी गिवन. माइकोप्लाज्मा आर किंगडम मोनेरा ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रोकैरियोटिक, दे आर नॉट हैविंग सेल वॉल, दे आर नॉट सेंसिटिव, या दे आर सेंसिटिव. क्या बोलेंगे? दे आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बिकॉज दे आर नॉट हैविंग सेल वॉल. और ये एनएरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, एब्सेंस में ग्रो होने वाले. Right, these are the points of mycoplasma. Now after
mycoplasma, we are moving to the next kingdom. What is the next kingdom? After kingdom Monera, we are going for next kingdom, that is kingdom Protista. kingdom Protista में जाएंगे अब. Let's see, Protista is divided into how many groups? This is what Protista suppose. Protista. And this kingdom Protista divided into what are the groups? ठीक है, जैसे किंगडम मोनेरा को डिवाइड करें हम, किंगडम मोनेरा डिवाइडेड इनटू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. In that same way, Protista is divided into one group called chrysophytes. One group called chrysophytes. Second group dinoflagellates. Dinoflagellates. Okay. And third group called euglenoids. Euglenoids also. And fourth group slime molds. Slime molds बोल के आ रहे हैं प्रोटिस्टा में. एंड वन मोर ग्रुप हियर, और एक ग्रुप आएगा प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ बोल के एक ग्रुप आएगा. दैट मीन्स किंगडम प्रोटिस्टा divided into 5 different groups: chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime molds and protozoa. Chrysophyte, if I say location wise अगर बात करेंगे, chrysophyte where they are present? They are present in fresh water as well as marine water. Both fresh and marine. बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों में ग्रो हो रहे हैं ये. बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों सिचुएशन में सर्वाइव होंगे. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्राइसोफाइट्स. डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट ये होते हैं मरीन, ये मरीन होते हैं, ओनली मरीन. यूग्लिनॉइड्स कहां मिलेंगे? देखो आपको, यूग्लिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश स्टैंडिंग वाटर. फ्रेश स्टैंडिंग वाटर में मिलेगा. देखिए, स्टैंडिंग वाटर, नॉट फ्लोइंग वाटर, नॉट रिवर, स्टैंडिंग वाटर में ग्रो होते हैं यूग्लिनॉइड्स. एंड दिस स्लाइम मोल्ड्स दे आर ग्रोइंग, स्लाइम मोल्ड्स आर ग्रोइंग ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर. ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर ग्रो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स. ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर. जबकि प्रोटोजोआ के बारे में अगर बात करेंगे, प्रोटोजोआ आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स. हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स में कंसिडर करेंगे. मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स प्रोटोजोआ में कंसिडर करेंगे. सो लाइक दिस किंगडम प्रोटिस्टा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. वन ग्रुप इज क्राइसोफाइट्स विच आर सर्वाइविंग इन बोथ द सिचुएशन. फ्रेश में भी ग्रो हो रहे हैं, मरीन वाटर में भी ग्रो हो रहे हैं, दोनों तरफ ग्रो हो रहे हैं, फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में. और डाइनोफ्लैजेलेट ग्रो हो रहे हैं मरीन वाटर में. डाइनोफ्लैजेलेट कहां पे? मरीन वाटर में. प्रोटोजोआ ग्रो हो रहे हैं इन बोथ द प्लेसेस, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लेसेस एज वेल एज एक्वाटिक प्लेसेस, दोनों में ग्रो हो गए प्रोटोजोआ. और प्रोटो मीन्स फर्स्ट, zoa means animal, so that means they are first animals on earth you can consider, but they are unicellular, that's why they are not placed in animal kingdom. प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में नहीं आते, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स, हेटेरोट्रॉफिक नेचर. ओके, यूग्लिनॉइड्स कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं? फ्रेश स्टैंडिंग वाटर में ग्रो हो रहे हैं. स्लाइमोल्ड्स आर ग्रोइंग ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर.
डेड और डीकेइंग मैटर पे ग्रो होने वाले कौन? स्लाइम मोल्ड्स हैं. ओके, नाउ वी विल टेक द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा मीन्स दे इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? प्रोटिस्टा का मतलब है दे इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. कंपल्सरी दे इंक्लूड व्हाट? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ओनली. राइट, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, अमोएबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, these unicellular organism belongs to protista, and they may be autotrophic और heterotrophic, दोनों नेचर मिलेगा यहां पर. तो इनका फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट कैरेक्टर इनका लिखेंगे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. कैसा है इनका? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. And second character we will write for this protista, cell wall. Third characteristic we will write for protista, nuclear membrane. Nuclear membrane. ठीक है. सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इनकी? सेलुलर है, सेल लेवल पर ही होगी. नो टिश्यूज, नथिंग, नो ऑर्गन, नो टिश्यू, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर. सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. मे बी प्रेजेंट. प्रोटिस्टा में सेल वॉल मे बी प्रेजेंट या नहीं तो एब्सेंट भी बोल सकते हैं. सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है. प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, कंपल्सरी प्रेजेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. नेक्स्ट कैरेक्टर सेल टाइप इनका कैसा है? सेल टाइप मिलेगा यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल टाइप है बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सीन, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक बोलो. And then this kingdom protista is not having defined boundaries, not having defined boundaries. Yes, any kind of organism included under protista if they are unicellular eukaryote, maybe plant like, animal like, fungus like. The condition should be unicellular eukaryotic रहा तो बस प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है. फ्लैजेला मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट. इनके पास फ्लैजेला दोनों सिचुएशन में है, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है. फ्लैजेला मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट. करेक्ट. मे बी फोटोसिंथेटिक, मे बी हेटेरोट्रॉफिक, not having defined boundary. Plant like, animal like, fungus like, all organisms. ठीक है, ये याद रखिए प्रोटिस्टा में. एंड क्लासिफिकेशन तो हम देख चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल द ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, देयर कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल करना है. ओके, नोट करिए पॉइंट से. सो फर्स्ट ग्रुप अब जाएंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा में. व्हाट इज द फर्स्ट ग्रुप? क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स फर्स्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म, क्राइसोफाइट. देखिए हम लोकेशन ऑलरेडी सबके कवर कर चुके हैं. लोकेशन स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग द लोकेशन, मेनली ज्यादा मुश्किल होता है उनको लोकेशन याद रखने के लिए. क्राइसोफाइट फ्रेश में भी मिल रहा है, मरीन में भी मिल रहा है, याद रखो. फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी. यही इनका फर्स्ट पॉइंट है. क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट को हम कॉमनली कॉल्ड, क्राइसोफाइट कॉमनली कॉल्ड बेसिलेरियोफाइसी,
बेसिलेरियोफाइसी भी बोल सकते हैं इनको, और यू कैन कॉल देम डायटम्स, इनको डायटम्स भी बोल सकते हैं, या नहीं तो डेस्मिड भी बोल सकते हैं, डेस्मिड्स भी बोल सकते हैं. सो मेनी नेम्स. ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन अलगे भी बोल सकते हैं इनको, गोल्डन अलगे. यस, ये कॉमन नेम हो गए इनके. नेक्स्ट, दीज डायटम्स और डेस्मिड्स, देयर सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल है मेड ऑफ सिलिका. सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका, सिलिका से बना हुआ सेल वॉल है. दैट्स वाई शाइनिंग, बहुत ज्यादा शाइनिंग करते हैं, ये शाइनिंग होते हैं बहुत ज्यादा. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पर्ल्स ऑफ द ओशन भी बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं? पर्ल्स ऑफ द ओशन. डायटम्स आर कॉमनली कॉल्ड पर्ल्स, बहुत ज्यादा शाइनिंग होते हैं तो इसलिए पर्ल्स ऑफ ओशन भी बोलते हैं. और यू कैन कॉल देम ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम. अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डायटम्स को फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, सो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डायटम वाज प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम. लेकिन बाद में पता चला इनको प्लांट्स में नहीं बल्कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप प्रोटिस्टा में रखना है. तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम है ना, इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था, इसलिए ओल्डर नेम है ये, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ऑल्सो कॉल्ड पर्ल्स ऑफ ओशन. व्हाई दे आर शाइनिंग सो मच? बिकॉज ऑफ विच मटेरियल? सिलिका मटेरियल होता है इनके सेल वॉल में और बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है. एंड सेल वॉल इनका होता है इंडिस्ट्रक्टेबल, सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल, सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये सिलिका से बना होता है, वेरी हार्ड सेल वॉल. इवन आफ्टर देयर डेथ देयर सेल वॉल रिमेन डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ ओशन. सेल वॉल ब्रेक नहीं होता, सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता, सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल है. डायटम्स का सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टेबल है. एंड डायटम्स, हाउ दे लुक? दे लुक like soap box, look like soap box, soap box की तरह होता है डायटम्स. जैसे सोप बॉक्स होता है ना, अपर लीड एंड लोअर केस, 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं इनके सेल वॉल में, सोप बॉक्स की तरह दिखता है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है. नेम द किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म हुज सेल वॉल इज मेड ऑफ 2 ओवरलैपिंग शेल्स एंड लुक्स लाइक सोप बॉक्स. सेल वॉल मेड ऑफ, कैसे बना हुआ है सेल वॉल? मेड ऑफ 2 overlapping shells, 2 overlapping shells. सेल वॉल बना हुआ है 2 ओवरलैपिंग शेल से, फिटेड लाइक ए सोप बॉक्स, सोप बॉक्स की तरह दिखेगा वो, सोप बॉक्स, फिटेड लाइक ए सोप बॉक्स. ये याद रखिए वर्ड. ओके, दिस इज व्हाट द क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में हम याद रखेंगे डायटम्स, डायटम्स बोल रहे हैं इनको, डेस्मिड भी बोल रहे हैं, बेसिलेरियोफाइसी भी बोल रहे हैं, गोल्डन अलगे भी बोल रहे हैं. सो मेनी अल्टरनेट नेम्स. सेल वॉल सिलिका से बना हुआ है, सेल वॉल ब्रेक नहीं होता, इंडिस्ट्रक्टेबल है सेल वॉल. एंड डिपॉजिट्स ऑफ डेड डायटम्स, डिपॉजिट्स ऑफ डेड डायटम्स को हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिट्स ऑफ डेड डायटम्स को बोलेंगे, डेड डायटम्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ डेड डायटम्स आर कॉल्ड डायअटमेशियस अर्थ. क्या बोलेंगे? डायअटमेशियस अर्थ बोलेंगे.
डिपॉजिट्स ऑफ डेड डायटम्स आर कॉल्ड डायटमेशियस अर्थ। और ये डायटमेशियस अर्थ है ना, वेरी यूजफुल है बिकॉज शाइनिंग मटेरियल है। सो दिस शाइनिंग मटेरियल डायटमेशियस अर्थ यूज्ड इन पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है ना सिलिका, तो पॉलिशिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। रोड मार्किंग में यूज करते हैं, रोड मार्किंग, पॉलिशिंग, रोड मार्किंग में यूज कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन में भी यूज करेंगे इसको, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में भी यूज कर रहे हैं। डायटमेशियस अर्थ के जो मासेस हैं, डिपॉजिट्स हैं एट द बॉटम ऑफ ओशन, दे आर कॉल्ड डायटमेशियस अर्थ। कहाँ पे यूज कर रहे हैं? पॉलिश में, पॉलिशिंग करने को, कोई मटेरियल को शाइन करना है बहुत ज़्यादा तो शाइनिंग मटेरियल की तरह यूज करेंगे। रोड मार्किंग में यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स, कोई भी अगर सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, उसका फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं डायटम्स। ये नोट करिए पॉइंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। आफ्टर दिस द नेक्स्ट ग्रुप आफ्टर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स के पास आ गए। डाइनोफ्लैजेलेट्स, ओके, जस्ट 1 मिनट। यहां पर हम देख सकते हैं कैरेक्टर्स ऑफ दिस डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट, these are the organism mostly marine, mostly what type? marine टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ओके, मार्क करेंगे यहां पे। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है देखिए, मरीन, एक पॉइंट मिल गया, मरीन। फ्रेश वाटर में नहीं है ये, मरीन में है। एंड दे आर कंपल्सरी फोटोसिंथेटिक, कंपल्सरी फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। एंड दे मे बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स। क्या लिखेंगे हम नोट्स में? डाइनोफ्लैजेलेट्स आप बना रहे नोट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, दिस इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर मोस्टली मरीन है, मोस्टली मरीन है और फोटोसिंथेटिक है। यस, ऑल डाइनोफ्लैजेलेट्स आर फोटोसिंथेटिक। दे आर ऑफ वेरियसली कलर्ड, बस इतना याद रखना, वेरियसली कलर्ड है, बहुत ज्यादा कलर होते हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, मतलब सेल वॉल इज मेड ऑफ हार्ड सेलुलोज प्लेट्स, हार्ड सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम दे हैव 2 फ्लैजेला, इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेला जाएगा लॉन्गिट्यूडनली, एक फ्लैजेला जाएगा अबव। वन फ्लैजेला इज लाइक दिस longitudinal, another flagella is like this. One flagella longitudinal, another flagella transverse. समझ रहे हैं? एक above जाना चाहिए, एक transverse जाना चाहिए। इनके पास flagella 2 हैं, एक ऊपर जाएगा, एक transverse जाएगा। Very important, very important. One longitudinally and one transversely in a furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellate, for example Goniolax, undergoes very fast rapid multiplication and turn the entire ocean into red color,
रेड कलर में दिखता है वाटर, ये वाटर जो है रेड कलर हो जाता है बिकॉज ऑफ विच डायनोफ्लैजेलेट, गॉनी ऑलेक्स, एंड दे आल्सो सिक्रीट टॉक्सिन्स, और वो टॉक्सिन से डेथ हो सकती है, फिशेस की डेथ हो सकती है उनकी। ठीक है, ये पॉइंट्स हम यहाँ पे फास्ट नोट करेंगे अभी। डायनोफ्लैजेलेट का फर्स्ट पॉइंट क्या था? मरीन था, फोटोसिंथेटिक थे, मरीन फोटोसिंथेटिक थे, वेरियसली कलर्ड थे, वेरियसली कलर्ड, बहुत ज्यादा कलर के थे। एंड थर्ड पॉइंट, इनके पास दो फ्लैजेला थे, टू फ्लैजेला, वन लॉन्गिट्यूडनल, एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल जाएगा और एक फ्लैजेला ट्रांसवर्स जाएगा। देखिए, वन फ्लैजेला ग्रोइंग लॉन्गिट्यूडनली, अनदर फ्लैजेला ग्रोइंग ट्रांसवर्सली। ये डायनोफ्लैजेलेट का कैरेक्टर। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करेंगे, कॉमन एग्जाम्पल डायनोफ्लैजेलेट में इट इज गॉनी ऑलेक्स। क्या नाम? गॉनी ऑलेक्स, बहुत ही कॉमन टाइप का एग्जाम्पल है। एंड गॉनी ऑलेक्स कॉजेस रेड टाइड्स ऑफ ओशन, causes red tides of ocean, ओशन में पूरा रेड कलर लाता है ये, रेड टाइड्स ऑफ ओशन बोल रहे हैं इनको, डायनोफ्लैजेलेट्स को। एंड दिस डायनोफ्लैजेलेट क्या है ना, टॉक्सिन सिक्रीट करता है, सिक्रीट टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन से किल्स फिशेस की डेथ हो सकती है वो टॉक्सिन से। ये पॉइंट्स आप याद रखिए डायनोफ्लैजेलेट्स कैटेगरी में। ओके, नोट्स कर लीजिए पॉइंट। चलिए, अभी नेक्स्ट ग्रुप जो है यहां पर अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, नेक्स्ट ग्रुप इफ यू सी हियर यूग्लिनॉइड्स। यहाँ पे आप डायनोफ्लैजेलेट का डायग्राम भी देख सकते हैं एनसीईआरटी में। दिस इज द डायग्राम गिवन डायनोफ्लैजेलेट, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं टू फ्लैजेला भी हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है उतना, टू फ्लैजेला हैं। ये डायनोफ्लैजेलेट का डायग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आइए यूग्लिना। दिस इज व्हाट यूग्लिना। एंड यूग्लिना में आप वन थिंग यू कैन नोटिस हियर, देयर आर टू फ्लैजेला, वन फ्लैजेला इज लॉन्ग, वन फ्लैजेला इज शॉर्ट। दो फ्लैजेला हैं यूग्लिना में, एक फ्लैजेला लॉन्ग होता है, एक फ्लैजेला शॉर्ट होता है। फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो होता है, फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर में। एंड देयर बॉडी इज नॉट हैविंग सेल वॉल, नो सेल वॉल, बट देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ए फ्लेक्सिबल प्रोटीन कवर। यूग्लिना के बॉडी पर एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन कवर होता है। व्हाट इज दैट प्रोटीन कवर? दैट प्रोटीन कवर इज कॉल्ड पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलेंगे। एंड ऑल द यूग्लिना दे आर फोटोसिंथेटिक। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यहां पर देखिए पॉइंट्स क्या क्या हैं इनके यूग्लिना के, यूग्लिनॉइड्स। फर्स्ट पॉइंट आ गया, देखिए यहां पर यूग्लिना फ्रेश वाटर में मिलेंगे, स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, फ्लोइंग वाटर में नहीं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है, दे हैव ए प्रोटीन लेयर। व्हाट इज दैट प्रोटीन लेयर कॉल्ड? पेलिकल। प्रोटीन लेयर का नाम क्या है? वो पेलिकल है। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी, फ्लेक्सिबल बॉडी बिकॉज ऑफ प्रोटीन लेयर। दे हैव टू फ्लैजेला, इनके पास दो फ्लैजेला हैं, एक शॉर्ट है फ्लैजेला और एक फ्लैजेला लॉन्ग है। दे हैव टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट वन लॉन्ग। और ये होते हैं सारे के सारे फोटोसिंथेटिक। सनलाइट की प्रेजेंस में
डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो नाइट टाइम में क्या करेंगे? नाइट टाइम में दे एक्ट एज एनिमल्स and they are not doing photosynthesis night time, and night time they act like animal, daytime they act like plant. That means euglenoid are having characteristics of both plant as well as animal. Plant की तरह भी हैं, animal की तरह भी हैं, दोनों भी हैं. When deprived of sunlight, जब sunlight नहीं है, when deprived of sunlight, जब sunlight नहीं मिलेगा, तो they behave like heterotrophs. They behave like heterotrophs. जब सनलाइट नहीं है तब ये हेटेरोट्रॉफ की तरह है. प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स. प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म. इंटरेस्टिंगली पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. मतलब ये बताया यूग्लिना के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं हायर प्लांट की तरह ही होते हैं. ठीक है, ठीक है. चलो यूग्लिनाइड्स, इनके जो है कैरेक्टर फास्ट लिखेंगे. यूग्लिनॉइड्स कहां पर ग्रो हो रहे हैं? फ्रेश स्टैंडिंग वाटर, फ्रेश स्टैग्नेंट, एक ही जगह ठहरा हुआ, स्टैग्नेंट वाटर. नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है इनके पास. अनइक्वल फ्लैजेला है, अनइक्वल फ्लैजेला है यूग्लिना के पास. अनइक्वल फ्लैजेला को बोलते हैं हम हेटेरोकॉन्ट. व्हाट डू यू कॉल अनइक्वल फ्लैजेला कंडीशन? हेटेरोकॉन्ट कंडीशन बोलेंगे. हेटेरोकॉन्ट मतलब अनइक्वल फ्लैजेला रहे तो हेटेरोकॉन्ट. थोड़ा सा स्पेलिंग बराबर करेंगे. हेटेरोकॉन्ट बोलते हैं वो कंडीशन को. Then they have flexible protein cover. What is the flexible protein cover around euglena? पेलिकल बोले उसको. ठीक है, पेलिकल. और एक बात क्या बताया यहाँ पे? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, डे टाइम फोटोसिंथेसिस. नाइट टाइम, नाइट टाइम ये बनेगा प्रीडेटर. प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाला, शिकार करने वाला, दूसरे और छोटे एनिमल्स को खाने वाला. नाइट टाइम में प्रीडेटर, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस. और इसके जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सिमिलर टू हायर प्लांट्स, सिमिलर टू प्लांट्स. प्लांट में जैसा क्लोरोफिल होता है यूग्लिनॉइड्स में भी वैसे ही क्लोरोफिल होता है. 2 फ्लैजेला हैं इनके. एंड व्हाट इज द एग्जांपल? यूग्लिना. यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल यूग्लिना. वेरी सिंपल. फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो हो रहा है ये यूग्लिनॉइड्स. सेल वॉल एब्सेंट है. 2 फ्लैजेला हैं, अनइक्वल हैं. हेटेरोकॉन्ट कंडीशन बोले, हेटेरोकॉन्ट. फ्लेक्सिबल प्रोटीन कवर है, पेलिकल. ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया, देखिए हेटेरोकॉन्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा. डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करना, नाइट टाइम में प्रीडेटर की तरह काम करना, और इनके पास जो पिगमेंट होते हैं सिमिलर टू हायर प्लांट. यूग्लिना इज कॉल्ड प्लांट लाइक एनिमल. यूग्लिना को बोलते हैं हम प्लांट लाइक एनिमल, मतलब प्लांट के जैसा एनिमल. प्लांट के कैरेक्टर भी है, एनिमल के कैरेक्टर भी है, तो प्लांट लाइक एनिमल हो गया ये. ओके स्टूडेंट्स, यूग्लिना के भी कैरेक्टर्स हम लिस्ट आउट कर दिए. इन टुडेज क्लास वी हैव सीन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द किंगडम मोनेरा, दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. फिर हमने स्टार्ट किया प्रोटिस्टा. इन प्रोटिस्टा वी हैव कवर्ड क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स. In next class we will continue with slime molds and protozoa. Okay, thank you.